Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B3. Our subject is English grammar, and in today's video, I will explain you lesson 23. Topic of the lesson is synthesis of sentences. So, as you all have seen that yesterday we have completed our lesson 22, which was transformation of sentences. So there is a connection between both lessons, synthesis of sentences and transformation of sentences. In transformation of sentences, I have explained you how you can join two sentences together and you can form a new sentence without changing the meaning of the previous one. In synthesis of sentences, we also do the same. So to understand what is synthesis of sentences, let's see. First of all, I will explain you what is synthesis. So we can join multiple simple sentences to form a single sentence without changing the meaning of the original sentence. तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं बिना उनके अर्थ में बदलाव किए. दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस और इसको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस बोला जाता है. The sentence that is thus formed can be simple, compound or complex in structure. So after joining the sentences, when we have joined multiple sentences, two sentences, we formed a single sentence. So the sentence which we have formed can be simple, compound or complex in structure. These are the types of sentences based on structure. So जो भी सेंटेंस हमको मिलेगा फाइनल में वो कंपाउंड भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है एंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइनिंग सिंपल सेंटेंसेस टू फॉर्म अनदर सिंपल सेंटेंसेस. किस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जाता है और उसके थ्रू हम दूसरे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. देयर आर डिफरेंट वेज इन विच सिंपल सेंटेंसेस कैन बी जॉइन टू फॉर्म अनदर सिंपल सेंटेंस. अलग अलग तरीके हैं जिनके थ्रू आप सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरे सिंपल सेंटेंसेस को बना सकते हैं. सो द फर्स्ट टाइप इज यूजिंग पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड परफेक्ट पार्टिसिपल इज हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो when two simple sentences have the same subject and describes two actions which are done at the same time, we can use a participle to join them. जब हमारे दो simple sentences होते हैं और दोनों का subject same होता है और दो actions को describe कर रहा होता है, means we are having two simple sentences. In both sentences the subject is same and two actions are being described and the both actions are being done at the same time. दोनों ही action एक ही समय पर हो रहे हैं. So हम क्या करते हैं, we can use a participle to join them. हम उन्हें जोड़ने के लिए participle का use करते हैं. Example you can see, she yelled at the top of her voice. अपनी पूरी आवाज़ में वो चिल्लाई. She ran out of the door और वो भाग गई. So here the subject is same. In the first sentence she is the subject and in the second sentence also she is the subject and both actions are different. First में वो चिल्लाई and second में वो भाग गई डोर के बाहर. So at the same time they both actions are being done. So हमने क्या किया, yelling प्रेजेंट पार्टिसिपल से ज्वाइन किया. येलिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, शी रैन आउट ऑफ द डोर. हेयर मीनिंग इज नॉट चेंज्ड एंड वी हैव ज्वाइंड दीज टू सिंपल सेंटेंसेज एंड वी हैव फॉर्म्ड अनदर सेंटेंस. नेक्स्ट टाइप होता है टू सिंपल सेंटेंसेज विद द सेम सब्जेक्ट में डिस्क्राइब टू एक्शंस. अब टू सिंपल सेंटेंसेज होते हैं, द सब्जेक्ट इज सेम एंड बोथ एक्शंस आर डिफरेंट, मीन्स दो अलग अलग एक्शंस को कर रहा होता है सब्जेक्ट. वन ऑफ विच इज कंप्लीटेड बिफोर अनदर स्टार्ट्स. और इनमें से एक एक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तब आपका दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है. टू जॉइन सच सेंटेंसेज वी यूज हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल और बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल. सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल और बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. सो एग्जाम्पल्स यू कैन सी, द फार्मर हैड बीन प्लगिंग द फील्ड्स ऑल डे. पूरा दिन जो फार्मर था वो खेतों की जुताई कर रहा था. ही वॉज टायर्ड और वो थक गया था. सो व्हेन ही वॉज टायर्ड आफ्टर प्लगिंग द फील्ड्स. तो दूसरा एक्शन कब स्टार्ट हुआ, व्हेन फर्स्ट एक्शन इज कंप्लीटेड. सो हमने क्या किया, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल से इसको ज्वाइन कर दिया. हैविंग प्लग्ड द फील्ड्स ऑल डे द फार्मर वॉज टायर्ड. पूरा दिन खेत जोतने के बाद जो किसान था वो थक गया था. सेकेंड सेंटेंस इज ही वॉज थर्स्टी, ही गल्प्ड डाउन अ ग्लास ऑफ वाटर. सो वो प्यासा था इसीलिए उसने क्या किया, गल्प्ड मीन्स होता है गटकना,
उसने एक ग्लास पानी जो था वो एक ही सांस में गटक लिया. सो हेयर सब्जेक्ट इज सेम, टू एक्शंस आर बीइंग डन एंड वो थर्स्टी था, इस वजह से उसने जो पानी था वो एक ही सांस में गटका. सो हेयर हमने क्या किया, बीइंग से ज्वाइन कर दिया. बीइंग थर्स्टी ही गल्प डाउन अ ग्लास ऑफ वाटर. So here you can see कि by using the participles we can join simple sentences, more than two simple sentences or two simple sentences, and we can form another sentence. That sentence can be simple or that sentence can be complex or compound in structure. Now let's see forward. Next topic is using infinitives. So we can join two sentences, we can join two simple sentences by using infinitive also. Infinitive is a type of non-finite verb. There are two ways to form a simple sentence from two other simple sentences using an infinitive. So दो तरीके होते हैं कि infinitive के थ्रू आप दो simple sentences को join कर सकते हैं. First you can see he has been specially hired, उसको specially hire किया गया. He has to select the best players in the team. उसे टीम में बेस्ट प्लेयर्स जो थे वो सिलेक्ट करना थे. सो वी हैव जॉइंड बाय यूजिंग infinitive. So the sentence is he has been specially hired to select the best players in the team. So हमने यहाँ to select is an infinitive, इसके थ्रू join कर दिया है sentence को. Second example is he was very ambitious. वो बहुत ambitious था. He did not want to stay forever in the country of his birth. वो अपनी जन्म लेने वाली कंट्री में, अब जिस देश में उसने जन्म लिया था उसमें हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता था. सो यहाँ पर हमने क्या किया, TOO टू एडवर्ब भी यूज़ किया है. ही वॉज टू एम्बिशियस टू स्टे फॉर एवर इन द कंट्री ऑफ हिज बर्थ. वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, उसी कंट्री में नहीं रुकना चाहता था, मीन्स जिसमें उसने जन्म लिया था. थर्ड एग्जाम्पल इज वी वेंट ऑन द फील्ड ट्रिप. हम फील्ड ट्रिप पर गए. वी हैड टू कलेक्ट सैम्पल्स. हमें सैम्पल्स कलेक्ट करना थे. So we went on the field trip in order to collect samples. Again we have joined the sentences and the meaning is same after joining it. Next topic is using an adverb or an adverb phrase. So we can join a sentence by using an adverb or adverb phrase also. We can convert the adjective in one sentence into an adverb or adverb phrase to join two simple sentences into one. सो हम क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं एडजेक्टिव को. एक सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होता है उसको एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं और एडवर्ब फ्रेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. एग्जाम्पल इज ही एट द बर्गर, ही वॉज हंग्री. उसने बर्गर खाया, वो भूखा था. सो हेयर हंग्री इज एडजेक्टिव, हमने इसको चेंज कर दिया इनटू एडवर्ब. ही एट द बर्गर हंग्रीली. उसने भूखे तरीके से बर्गर को खाया. सो हंग्री इज एन एडजेक्टिव एंड हंग्रीली इज एडवर्ब. हमने हंग्री को हंग्रीली में चेंज कर दिया एंड वी हैव जॉइंड टू सेंटेंसेस टुगेदर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. Next topic is using TOO to, that is an adverb. The adverb to indicates that something is in excess of what is considered the normal limit. So to indicate करता है कि कोई भी चीज़ जो है वो बहुत अधिक मात्रा में है, जितनी उसकी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है. We can also use to join sentences. हम इसका यूज़ तब भी करते हैं जब हमें सेंटेंसेस को ज्वाइन करना होता है. एग्जाम्पल इज द ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ड्रेस बहुत सुंदर है. आई कुड नॉट गिव इट अवे. मैं इसे दूर नहीं रख सकती. द ड्रेस इज़ टू ब्यूटीफुल टू गिव अवे. ये इतनी ज़्यादा सुंदर है कि इसे दूर नहीं किया जा सकता. अगेन द मीनिंग इज सेम एंड वी हैव जॉइंड द सेंटेंस बाय यूजिंग TOO to. Next topic is using having been. So we can combine two sentences into a simple sentence using having been. हम दो sentences को combine करके एक simple sentence form कर सकते हैं by using having been. See the examples. Rima was taught how to swim. रीमा को सिखाया गया कि कैसे तैरा जाता है. She now takes part in competitions. वो अब प्रतियोगिताओं में भाग लेती है. So हमने क्या किया, having been plus third form of verb यहाँ किया. Having been taught how to swim, रीमा नाउ टेक्स पार्ट इन कॉम्पिटिशन. ये सिखाए जाने के बाद कि कैसे तैरा जाता है, रीमा अब प्रतियोगिताओं में भाग लेती है. सेकेंड एग्जाम्पल इज द बॉय वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज मदर. लड़के को उसकी माँ के द्वारा डांटा गया. ही सैट इन अ कॉर्नर बाय हिमसेल्फ. और वो अकेले एक कोने में जाकर बैठ गया. सो हमने क्या किया, हैविंग बीन अगेन. हैविंग बीन स्कॉल्डेड बाय हिज मदर, द बॉय सैट इन अ कॉर्नर बाय हिमसेल्फ. अपनी माँ के द्वारा डांटे जाने के बाद लड़का जो था वो एक कोने में जाकर अकेले बैठ गया.
नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग अ नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन. अपोजिशन मीन्स होता है यहाँ पर विरोध नहीं होता है. अपोजिशन मीन्स है यहाँ पर समानाधिकरण, मीन्स एक दूसरे के समान श्रेणी में. सो हम क्या कर सकते हैं, नाउन और नाउन फ्रेज को अपोजिशन में यूज कर सकते हैं. टू सिंपल सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी ज्वाइन बाई प्लेसिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन. दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जा सकता है एक नाउन और नाउन फ्रेज को अपोजिशन मीन्स समान श्रेणी में रखकर. अ नाउन और अ फ्रेज दैट इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर अ नाउन टू मेक अ रेफरेंस टू इट इज सेड टू बी इन अपोजिशन टू इट. सो एक नाउन और एक फ्रेज जो नाउन के तुरंत बाद, मीन्स अ नाउन इज गिवन एज अ सब्जेक्ट एंड उसके तुरंत बाद एक फ्रेज या फिर एक नाउन का यूज किया जाता है जो आपके सब्जेक्ट को ही संबोधित करती है. मीन्स आपका जो फर्स्ट नाउन है उसको ही संबोधित कर रही है, उसको अपोजिशन में बोला जाता है. अपोजिशन मीन्स समान श्रेणी. एग्जाम्पल यू कैन से मोजार्ट वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन. मोजार्ट जो थे वो एक महान म्यूजिशियन थे. ही कंपोज्ड ब्यूटीफुल म्यूजिक. उन्होंने ब्यूटीफुल म्यूजिक कंपोज किया. सो हमने यहाँ क्या किया, मोजार्ट द ग्रेट म्यूजिशियन कंपोज्ड ब्यूटीफुल म्यूजिक. सो मोजार्ट यहाँ आपका नाउन हो गया, द ग्रेट म्यूजिशियन यहाँ आपका नाउन फ्रेज हो गया. और द ग्रेट म्यूजिशियन किसको रेफर कर रहा है, इट इज रेफरिंग टू मोजार्ट ओनली. And hence we have joined two sentences. Mozart, the great musician, composed beautiful music. So here the phrase the great musician is used in opposition to Mozart. यहाँ पर like I told you कि जो हमने phrase use की है the great musician, that is in opposition to Mozart. Mozart की समान श्रेणी में है to join the two sentences. Look at another example. यशपाल was a well known scientist. यशपाल जो है वो एक well known, बहुत अच्छे से जाने जाने वाले वैज्ञानिक थे. He made many contributions in the field of astrophysics. उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में बहुत सारे योगदान दिया है. सो हेयर द वेल नोन साइंटिस्ट यशपाल, बहुत अच्छे से जाने जाने वाले साइंटिस्ट यशपाल मेड many contributions in the field of astrophysics. Here the noun Yashpal is used in opposition to the well known scientist to join the two sentences. So the well known scientist it is which is a phrase and it is referring to Yashpal only. Next topic is using a preposition with a noun or an ing verb. So how we can join two simple sentences by using a preposition with a noun or by using a preposition with an ing plus verb. So read the examples. The students were felicitated. Students बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे. Then the program began. और तब जो program था वो begin हुआ. So after the felicitation, after is a preposition and felicitated was verb and felicitation आपका noun है. After the felicitation of the students, the program began. Second example is he lost a lot of money in his new business. उसने अपने नए business में बहुत सारा पैसा जो था वो खो दिया. He still hopes to be a successful businessman one day. और वो अभी भी आशा करता है कि वो एक दिन एक successful businessman बनेगा. So in spite of losing a lot of money in his new business, अपने नए business में बहुत सारा पैसा खोने के बावजूद, he hopes to be a successful businessman one day. वो आशा करता है कि वो एक दिन successful businessman बनेगा. So here in spite of losing, in spite of which is a preposition which is complex preposition and lost का हमने क्या किया, lost was a verb and here we have made losing. So क्या किया, loss plus ing. थर्ड एग्जाम्पल इज ही हर्ड द गुड न्यूज. उसने अच्छी खबर सुनी. ही जम्प्ड फॉर जॉय, और खुशी से उछला. सो ऑन हियरिंग द गुड न्यूज ही जम्प्ड फॉर जॉय. अच्छी खबर सुनने पर वो खुशी से उछला. ऑन इज अ प्रीपोजिशन एंड हियरिंग इज वर्ब प्लस ing. देन प्रीत हेल्प्ड रागिनी विद द एक्सपेरिमेंट. प्रीत ने रागिनी की मदद की एक्सपेरिमेंट में. रागिनी थैंक्ड हिम. रागिनी ने उसको थैंक्स किया. सो रागिनी थैंक प्रीत फॉर हेल्पिंग हर विद द एक्सपेरिमेंट. रागिनी ने थैंक किया प्रीत को उसकी एक्सपेरिमेंट में मदद करने के लिए. सो हियर यू कैन सी दैट वी कैन जॉइन टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद अ नाउन एंड बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद ing प्लस verb plus ing. Next is forming compound sentences from simple sentences. That I have already explained in transformation of sentences also, that how we can form compound sentences from simple sentences. So क्या करते हैं, simple sentences can be combined to form a single compound sentence by using coordinating conjunctions like and, but, for, yet, and, therefore, and
कोरिलेटिव कंजक्शंस लाइक आइदर और एंड नाइदर नॉर। सो सिंपल सेंटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड सेंटेंस भी बना सकते हैं बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विच आई हैव टोल्ड यू, एंड यूजिंग द कोरिलेटिव कंजक्शंस आल्सो लाइक आइदर और एंड नाइदर नॉर। So let's see the examples to understand it better. She read the book. उसने किताब पढ़ी. She returned it to the library. उसने उसे लाइब्रेरी को लौटा दिया. So here we have joined these both simple sentences by using and. She read the book and returned it to the library. उसने किताब पढ़ी और लाइब्रेरी को लौटा दी. So we have made a compound sentence by using two simple sentences joined by coordinating conjunction. सेकेंड एग्जाम्पल इज राखी नोज हाउ टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस. राखी को पता है कि किस प्रकार बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं. शी हैज़ बिन सिलेक्टेड टू बी एन इंटरप्रेटर, और उसे सिलेक्ट किया गया है एक इंटरप्रेटर के रूप में. इंटरप्रेटर द वन हु कैन ट्रांसलेट द लैंग्वेजेस ऑफ अदर्स. सो हियर वी हैव जॉइंड two sentences by using the coordinating conjunction which is for and formed a compound sentence. Rakhi has been selected to be an interpreter for she knows how to speak several languages. राखी को सिलेक्ट किया गया है इंटरप्रेटर के रूप में क्योंकि वो जानती है कई सारी भाषाएं कैसे बोली जाती हैं. थर्ड सेंटेंसेस, आई हैव नॉट मैट आवर न्यू नेबर. मैं अपने नए पड़ोसी से नहीं मिला हूँ. आई डोंट नो हिज नेम. मैं उनका नेम नहीं जानती हूँ, जानता हूँ. So here we have formed compound sentence by using the correlative conjunction which is neither nor. So we have formed the sentence neither I have met our new neighbor nor do I know his name. ना ही मैं अपने नए पड़ोसी से मिली हूँ और ना ही मैं उनका नाम जानती हूँ. Next topic is forming complex sentences from simple sentences. So how we can form complex sentences from simple sentences. So before explaining this topic, I would like to remind you that in complex sentences, one a subordinate clause should be there, one main clause and one subordinate clause. So if you are forming a complex sentence from simple sentences only, so one of the simple sentence should be converted into subordinate clause, means dependent clause. Now let's see, simple sentences can be combined using subordinating conjunctions to form a single complex sentence. So simple sentences को हम combine कर सकते हैं subordinating conjunction का use करके to form a single complex sentence. One of the simple sentence should be converted to a subordinate clause, adverb, adjective or noun, while the other should act as an independent clause. So जैसा कि मैंने आपको अभी explain किया कि when you are forming कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो आपको सिंपल सेंटेंस के किसी भी एक सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वन सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड बी देयर. सो दैट क्लॉज कैन बी एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज. और बाकी के जो सेंटेंसेज हैं दे कैन एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओनली वन सेंटेंस शुड बी कन्वर्टेड टू सबऑर्डिनेट क्लॉज. To form a complex sentence with an adverb clause, we use words like while, although and whether. So complex sentence जब हम form करते हैं एडवर्ब क्लॉज के थ्रू, हम क्या करते हैं, वी यूज वर्ड्स लाइक वाइल, ऑल्दो एंड वेदर. एग्जाम्पल देख लेते हैं. इज द वाटर सेफ टू ड्रिंक? वी डू नॉट नो. क्या पानी पीने के लिए सुरक्षित है, पीने के लायक है? हम नहीं जानते हैं. सो एडवर्ब क्लॉज के थ्रू हम कैसे ज्वाइन करेंगे? वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं. वेदर द वाटर इज सेफ टू ड्रिंक, कि पानी पीने के लायक है या नहीं. सो हेयर हमने क्या किया, एडवर्ब क्लॉज बना दिया, वेदर द वाटर इज सेफ टू ड्रिंक. सेकेंड सेंटेंस इज द चिल्ड्रन ओपन द पैकेट. बच्चों ने पैकेट खोला. इट वॉज फुल ऑफ डार्क चॉकलेट्स, और वो डार्क चॉकलेट से भरा हुआ था. सो हेयर वी हैव जॉइंड बाय यूजिंग द एडजेक्टिव क्लॉज. द चिल्ड्रन ओपनड द पैकेट, बच्चों ने पैकेट खोला, विच वॉज फुल ऑफ डार्क चॉकलेट्स, जो कि डार्क चॉकलेट से भरा हुआ था. सो हेयर हमने क्या किया, वी हैव used adjective clause which was full of dark chocolates. थर्ड एग्जाम्पल इज द एक्यूज्ड वॉज इनोसेंट. जो जिसके ऊपर दोष लगा था वो निर्दोष था. द जज न्यू इट, और जज इस बात को जानता था. सो हमने क्या किया, नाउन क्लॉज से ज्वाइन किया. द जज न्यू दैट द एक्यूज्ड वॉज इनोसेंट. जज ये जानता था कि जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो निर्दोष है. सो हेयर वी हैव फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज बाय यूजिंग सिंपल सेंटेंसेज. एंड हमको क्या करना होता है, टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम सिंपल सेंटेंसेज, किसी भी एक सिंपल सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज करना होता है. दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन clause. Next topic is using a relative clause. How we can join simple sentences by using relative clause, that I will explain in this topic.
we can join two simple sentences into a complex sentence using relative clauses. So हम simple sentences को join कर सकते हैं और एक complex sentence बना सकते हैं relative clause का use करके. The relative clause includes relative pronouns like who, which and that. So relative clause आपकी जो होती है वो include करती है relative pronouns which you already know like who, which and that. Let's see the examples to understand it better. This is the bus. It ferries children to distant schools. ये एक बस है, ये बच्चों को लेकर जाती है दूर के स्कूलों में. So this is the bus that ferries children to distant schools. ये वो बस है जो बच्चों को दूर के स्कूलों में लेकर जाती है. So here हमने क्या किया, relative pronoun that का यूज किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई मैट अ काइट मेकर. मैं एक पतंग बनाने वाले से मिला. ही मेक्स कलरफुल काइट्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ हिज नेबरहुड. वो अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के लिए कलरफुल काइट्स बनाता है. आई मेट अ काइट मेकर हु मेक्स कलरफुल काइट्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ हिज नेबरहुड. मैं उस काइट मेकर से मिला जो अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के लिए रंग बिरंगी पतंगे बनाता है. यहाँ पर हमने हु के साथ ज्वाइन कर दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव लर्न अ डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस. मैंने क्लासिकल डांस की एक डिफिकल्ट फॉर्म सीखी है. इट हैज़ मेड मी मोर फिट. और इसने मुझे ज़्यादा फिट बना दिया है. सो हेयर हमने क्या किया, विच के साथ ज्वाइन किया है. विच इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन. आई हैव लर्न अ डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस विच हैज़ मेड मी मोर फिट. मैंने क्लासिकल डांस की एक डिफिकल्ट फॉर्म सीखी है जिसने मुझे ज़्यादा फिट बना दिया है. सो इन दीज एग्जाम्पल्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन फॉर्म a complex sentence by using two simple sentences, and we have to use the relative clause. So this was lesson 23, synthesis of sentences, which I have explained you. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.